بلوچ یکجہتی کمیٹی پرامن طور پر بیٹھے ہیں اور اب پھر سے سنجیدگی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سنجیدگی سے مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے آئے گا وہ خود اختیار رکھتا ہو۔ پہلا یہ ہوگا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ مزید فورسز کی جانب سے کسی بھی قسم کے تشدد کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ خود گوادر آئے اور ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کر کے اعتراف کرے کہ اس پورے دورانیے میں ہونے والے نقصانات کا ذمہ دار خود حکومت بلوچستان ہے۔ تمام مظاہرین جنہیں بلوچ راجی بچی کے حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے یا گھروں سے چھاپے لگانے کے بعد جبری گمشدہ کیا گیا ہے، فوری طور پر رہا کیے جائیں اور ان پر درج تمام FIR ختم کیے جائیں۔ نوشکی، تربت اور گوادر میں ہونے والے اسٹریٹ فائرنگ میں زخمی اور شہید ہونے والے مظاہرین کا FIR کور کمانڈر FC پر درج کیا جائے۔ تمام راستے کھول دیے جائیں۔ مکران میں غیر اعلانیہ کرفیو فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ گوادر میں پانی فوری طور پر بحال کیا جائے اور خطے بھر میں انٹرنیٹ سروسز فوری طور پر بحال کیے جائیں۔ حکومت پاکستان اس بات کو نوٹیفائی کرے کہ راجی بچی کے شرکاء یا مدد کرنے والے کسی بھی شخص کو نہ ہراساں کیا جائے گا اور نہ ہی مزید اس حوالے سے کوئی FIR درج کی جائے گی اور نہ ہی مستقبل میں کسی پرامن پروگرام پہ غیر ضروری طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کی خطرناک صورتحال کا مکمل نوٹس لیں۔ اگر یہ سرکار ان کو تحریری طور پر آ کر آپ کو جو آپ نے لکھے ہیں ان کو اگر منظور کرے تو آپ کا لائے عمل پر دیکھیں ہمارا لائے عمل یہی ہوگا کہ ہم تمام دھرنے اسی وقت فالو کر لیں گے۔ معزز بلوچ راج اور دنیا بھر میں ہمیں سننے اور ہماری آواز بننے والوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہم گزشتہ 4 دن سے آل پارٹیز کے ثالثی میں ریاست کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران بار بار ریاست سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ ریاست سازگار ماحول پیدا کرے، بلوچستان بھر میں پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال بند کرے، راستے اور انٹرنیٹ کھول دے جن کی بندش سے پورے مکران میں خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ 9 دنوں سے لوگوں کے اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ریاست ہمارے آئینی اور قانونی مطالبات کو تسلیم کرنے کی بجائے مذاکرات کے نام پر ہمیں مسلسل ہراساں کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے۔ اگر دھرنا ختم نہیں کیا گیا تو قتل عام کر کے دھرنے کو ختم کرائیں گے۔ یہ تمام کریک ڈاؤن راجی بچی کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ راجی بچی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ جلسہ کیا جائے گا بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کے پامالیوں کے خلاف۔ ہم 4 دن سے مذاکرات کے دوران بار بار ریاست سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان بھر میں پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال بند کرے تاکہ یہ مذاکرات آگے بڑھ سکے، لیکن ریاست طاقت اور تشدد کے استعمال کو بند کرنے کے بجائے اس میں شدت لا رہی ہے۔ ان 4 دنوں کے جاری مذاکرات کے دوران بھی کوئٹہ اور کراچی سے پرامن مظاہرین کو گرفتار کیا گیا اور ان پر بے رحمانہ تشدد کیا گیا، جبکہ کل ریاست نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی۔ نوشکی میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید جبکہ متعدد کو زخمی کر دیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ریاست میں قانون اور آئین نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ ایک جانب ریاست نے اپنی انتظامیہ اور وزراء کو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا انتظامیہ اور وزراء ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اب کوئی طاقت اور تشدد کا استعمال نہیں ہوگا، لیکن دوسری جانب گوادر میں جاری مذاکرات کے دوران نوشکی اور کراچی میں پرامن مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بربریت کی بدترین مثال قائم کی جا رہی ہے۔ ریاست پاکستان اپنے ہر قدم کے ساتھ ثابت کر رہی ہے کہ بلوچستان میں پرامن احتجاج کو بھی کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پرامن احتجاج کی اجازت تو خود پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے، لیکن ریاست گوادر میں ایک پرامن دھرنے کے خلاف اپنی پوری طاقت بلوچ قوم کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ پرامن دھرنے کے بدلے پورے بلوچستان کو گزشتہ 10 دنوں سے مکمل سیل رکھا جائے؟ پورے مکران میں اس وقت کرفیو نافذ ہے۔ ریاست بلوچوں کو بندوق اور بھوک دونوں سے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر چکی ہے اور اس وقت پورے بلوچستان میں 5 جگہوں میں دھرنے دیے جا رہے ہیں اور پورے بلوچستان میں احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات اس عمل کا ثبوت ہے کہ یہ تحریک پورے بلوچ قوم کی تحریک ہے اور اس تحریک کو کچلنے سے
पूरे बलूचिस्तान में इसके पुरतशद्दुद और मनफी असरात आएंगे। मुज़ाकरात अब सिर्फ इन नुकात पर होंगे, क्योंकि हम मुज़ाकरात के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अब अंदाज़ा हो चुका है कि इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत इख्तियार नहीं रखती है कि इस वाक़े पर आकर मुज़ाकरात कर सके और इस तमाम मसले को हल कर सके। पहला ये होगा कि होम डिपार्टमेंट फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे कि मजीद फोर्सेस की जानिब से किसी भी किस्म के तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला और इसकी काबीना खुद ग्वादर आए और हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इतराफ़ करे कि इस पूरे दौरानिए में होने वाले नुकसानात का जिम्मेदार खुद हुकूमत बलूचिस्तान है, जिन्होंने इस अवामी पुरअमन प्रोग्राम को तशद्दुद से कुचलना चाहा, और हुकूमत बलूचिस्तान दोनों जानिब से होने वाले जानी और माली नुकसान की मजम्मत करे। तमाम मुजाहिरीन जिन्हें बलोच राजी मुच्ची के हवाले से गिरफ्तार किया गया है या घरों से छापे लगाने के बाद जिबरी गुमशुदा किया गया है, फौरी तौर पर रिहा किए जाएं और इन पर दर्ज तमाम FIR खत्म किए जाएं। नूशकी, तुर्बत और गवादर में होने वाले स्ट्रेट फायरिंग में जख्मी और शहीद होने वाले मुजाहिरीन का FIR कोर कमांडर FC पर दर्ज किया जाए। तमाम रास्ते खोल दिए जाएं। मकरान में गैर एलानिया कर्फ्यू फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। गवादर में पानी फौरी तौर पर बहाल किया जाए और खित्ते भर में इंटरनेट सर्विसेज फौरी तौर पर बहाल किए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान इस बात को नोटिफाई करे कि राजी मुच्ची के शुरा या मदद करने वाले किसी भी शख्स को न हरासा किया जाएगा और न ही मजीद इस हवाले से कोई FIR दर्ज की जाएगी और न ही मुस्तकबिल में किसी पुरअमन प्रोग्राम पे गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। इस राजी मुच्ची के दौरान रियासती एहलकारों ने आम आवाम को जितना माली नुकसान दिया है, जिनमें इनके घरों में तोड़फोड़ करना, गाड़ियों को जलाना या जाती सामान जब्त करना, हुकूमत बलूचिस्तान इन नुकसानात का अजाला खुद करेगी। हम रियासत पर वाज़िया करते हैं कि आप जुल्म की तमाम हदूद पार करके भी पूरे बलूचिस्तान से लाखों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर इस बर्बरियत और दरिद्री के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर निकल आए तो इस अवामी सैलाब में आपकी ताकत और गुरूर सब गर्क हो जाएगा। हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान की खतरनाक सूरत-ए-हाल का मुकम्मल नोटिस लें। ग्वादर समेत पूरे मकरान में लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाने का सबब बन सकता है। इसके साथ साथ हम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से भी यही गुजारिश करते हैं कि जिस तरह ग्वादर को मुआसरे में लिया गया है और इंटरनेट बंद है, तो हमें एक्सेस नहीं है कि यहाँ पे होने वाली सूरत-ए-हाल को हम पहुँचा सके। और बलूचिस्तान में सोशल मीडिया ही वो वाहिद जरिया है जो यहाँ पर होने वाले मूवमेंट्स को हाईलाइट करता है, और इस वक्त सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक जिम्मेदार साथी होने की हैसियत से बलूचिस्तान में जारी जो जुल्म और बर्बरियत हो रहा है उसको फौरी तौर पर कवरेज दें और एक अनबायस्ड रिपोर्ट दुनिया के सामने पेश किया जाए। और आज हमें ये खतरा भी है कि पूरे बलूचिस्तान में जो धरने जारी है उनको खत्म करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस वक्त ग्वादर धरने में भी फिर से वायलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी जिम्मेदार रियासत और इसके तमाम अदारे होंगे। यहाँ पर बैठे शुरा बलोच यकजहती कमेटी पुरअमन तौर पर बैठे हैं और अब फिर से संजीदगी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। लेकिन संजीदगी से मुज़ाकरात का मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात के लिए आएगा वो खुद इख्तियार रखता हो। आज ये तहरीक बलूचिस्तान के घर, शहरों और सड़कों में है और हजारों लोग इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। अब रियासत पर डिपेंड करता है कि वो एक संजीदगी के साथ इस तहरीक को सुनेगी, इससे जुड़े हुए लोगों को सुनेगी, या फिर से अपने तारीख को दोहराते हुए वायलेंस का इस्तेमाल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है जैसे डॉक्टर साहब, सवाल है उर्दू बलूचिया मनी जो स्टेशन के बांदा चुना मैं इंफॉर्मेशन ऐसे कि वज़ीर आला आएंगे ग्वादरा, तो वती कसे आई प्रोफाइल डेलीगेशन है घुमा, तो आइए मोल मुराद दुआ भले अक्के मोल या केशे के शुमे घुमा कहे मुज़ाकरात चीज़ें का दो महीने में से तो सरकार मतलब हमें के
के आइए बीच दरमियाना कैसे ब्रिज बने तगा आके गप्पा बरगो आ रहे आइन कुछ के मुताबिक इसी के माँ सज्जे ऐसे शुमारा शुमे डिमांड ऐसा माँ मनने तगा और अमी के शुमा के लिख के तगा दा तगा ई भी ऐसे साइन को था और ऐसे शुमे ऐसे साइन करने गए चिया और ये माँ मानने तगा तो इसी तरह चिचो सदाकत हस्ते और शुमे करा चिचो मालूमात हस्ते चूँकि आयन वर्जन शुमा चीफ शेवर है। पहली बात तो ये है कि हमें कोई एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, हमें कुछ भी नहीं पता है कि हमारे इस धर्म के खिलाफ या इस पर कितने इस किस्म का बयान आ रहा है। और हमने जो मुज़ाकरात 3 दिन पहले किए थे, हम उन मुज़ाकरात पर आज भी कायम है। उस मुज़ाकरात की पहली शर्त यही थी कि पूरे बलूचिस्तान और कराची में जितने मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाएगा, तमाम FIRs क्वाश किए जाएंगे और राजी मुची के सिलसिले में और मजीद तशद्दुद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ना ही किसी शख्स को हरासा किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान कराची में 3 FIRs जारी किए जा चुके हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों को, जिनमें खवातीन भी शामिल है, उनको अरेस्ट भी किया गया है। और नौशकी में FC की जानिब से फायरिंग हुई है, जिसमें एक आम शहरी जो है ना उसको जहाँ वो शहीद हुआ है और उसके साथ 3 और जो है वो जख्मी हुए। तो इससे ये साबित होता है कि जो मुज़ाकरात जिन पॉइंट्स पर किया गया था उस पर हुकूमत खुद कायम नहीं है और मुज़ाकरात करने वाले जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और इंतज़ामिया थी वो अपना इख्तियार खो चुकी है। हम आज भी यही इसी उस पर कायम है कि जो भी इख्तियार रखता है वो आए मुज़ाकरात करें। हम पुरअमन तौर पर बैठे हैं धरने में, लेकिन जब तक इख्तियारदार अदारे जो मुज़ाकरात हुए हैं उन पर अमल दरामद नहीं करते हैं, उसको यकीनी नहीं बनाते हैं, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और साथ साथ वज़ीर आला साहब आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, हम उनसे भी यही वो करेंगे कि वो आए, सबसे पहले एतराफ़ करें कि गुज़श्ता 10 दिनों से जिस तरह वायलेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों को गिरफ्तारियां हुई हैं और जो मासूम लोगों की जानें गई है, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और यहाँ के फोर्सेस हैं। इसकी मजम्मत करें और इस मसले को हल करें और यकीनी बनाएं कि राजी मुची के दौरान जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जितने लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, उन सबको रिलीज किया जाएगा और आगे आने वाले वक्तों में स्टेट वायलेंस यूज नहीं की जाएगी पुरअमन मुजाहिदीन के खिलाफ। तो हम बिल्कुल तैयार हैं हर किसी से मिलने के लिए, लेकिन जब तक हमारे डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। ठीक। दूसरी बात ये है कि आप एक तरफ जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो आकर हमसे मतलब मुज़ाकरात करें, जितने भी आपने डिमांड्स पेश किए तो हुकूमत बलूचिस्तान से किए, और दूसरी जानिब जो है आप UNA की बात कर रहे हैं तो उनको भी आप मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब जो जिससे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं उन पर भरोसा भी नहीं है और फिर जो है उनसे ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि जी वो आकर मुज़ाकरात करें, तो ये तज़ाद थोड़ा नहीं है? देखिए, हम समझते हैं कि हम एक सियासी तंजीम है और सियासी तंजीमें बाकायदा डिबेट से, लॉजिक से इस मसले को हल करते हैं। हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि हमारी तरफ से मसले को हल करने के लिए हम हुकूमत को, तमाम जिम्मेदारों को हमेशा मौका देते आए हैं। इसके साथ साथ उनके अमल से ये साबित होता है कि वो इख्तियार नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मौका देते आए हैं कि वो इख्तियार रखें। और अक़वाम मुत्तहिदा की बात है तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक सिग्नेटरी नेशन पाकिस्तान भी है जिसने ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन पर के साइन है, तो हम उनसे नोटिस की अपील इसलिए करते हैं कि गुज़श्ता 9 दिनों से पूरा बलूचिस्तान इस वक्त मुआसरे में है, नेट बंद है, इंटरनेट बंद है, रास्ते बंद है, लेकिन पाकिस्तान में ना पाकिस्तान की मीडिया इस पर बात कर रही है, ना ही पाकिस्तान की सियासी तंजीमें इस पर बात कर रही है। बलूचिस्तान पे बात करने का वो लोग कभी जुर्रत नहीं कर सकते। तो इस वक्त हमारा जो फोकस है वो इंटरनेशनल तंजीमें हैं, क्योंकि इनका एक नोटिस बलूचिस्तान में जारी जो सारी हुकूमत की पामालियाँ हैं उनको रोक सकता है। उन पर सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसको हमेशा छुपाया गया है, कोई कवरेज नहीं है, ना नेशनल मीडिया में ना इंटरनेशनल मीडिया में। और नेटवर्क को बंद करने का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से वजह भी यही है कि ये जो एक जारी जबर है, जिस तरफ स्टेट वायलेंस यूज हो रहा है वो सामने ना आ सके मीडिया की। जी डॉक्टर साहब, इधर बुआतरा गेश्तर कैसे मखलूक अस्ता वो ज़रा को दरिया बंदूक आई रोचा रवा शिकार करना दूमी रोचा काया वारा आणि मतलब कि नो रोचे शाइन लोग मुकम्मल फाक काया वारा नहीं इसी बात
जी मंगोशा की जिम्मेदार भी स्टेट मावली रूचा गोश्तका की मैं अपनी डिमांड भी हमें होता कि राह पच बिकने राह पच का नगाश हुई कारोबार बंद करने की दुरुस्त स्टेट को तमेशे तो का बलूच जयंती कमेटी है इधर नहीं हिच बड़ी दस्ते नीस्ते हो मैं लूट भी हमेशा के ग्वादर मर्दम ग्वादर ना बल्कि सर्जन मकुरान मर्दम ये वक्त बाज तकलीफें आमाशा अदरुस्तन ये तकलीफें बंद करने पे बनते वो मर्ची दरना शबे बार्डर भी या ज़र भी थी अगैर एलानिया मुद्दत इसका बंद करना बनता और आप बंद करेंगे इच्छे आईनी कानूनी इच्छे जवाज़े हुकूमत नहीं मगर दयक न होता इधरुस्तानी आईनी कानूनी जवाज़े दयक भी थी कि हम आम मर्दों की आये डेली रोजगार बार्डरी गुजरी आ पर्चा तल करने की थी इधरुस्तानी वजह से बलूचक जेती कमेटी कार करना बलूचक जेती कमेटी फोकस हमें होता कि हर अमा बलूच क्या रियासती जबर आमाची आवती एक जिंदगी है कि हम जिंदा ग्वाजे न गया आम जिंदगी ग्वाजे खुद का न गए अदरुस्त खत्म करना गए बनते तो इसे मस्तरे जिम्मेदार स्टेट है मर्ची नोमी रूचेदा मनिश्तगी सरजमे को अदर सील करना गुता स्टेट वजह से सील करना गुता स्टेट आम मर्दमाना दुकान पछ करने के वास्ता भी नहीं लगाए ओ आप बंद करना गुता सिर्फ और सिर्फ की ग्वादर मर्दम तक करना गवा ना तना ग्वादर बल्कि सरजम कुरान तुका मर्ची तो उसे की किल्लत आज का खुराक इससे मर्दमाना वरग वास्ता इच्छी ये बस काम करने का एक तरीका कार दिखे इच्छी मानी गुड्डी सवाल है आखिर सवाल ये है कि आपके जो मुतालबात जो आपने पेश किए हैं मतलब BYC ने अगर ये सरकार इनको तहरीरी तौर पर आकर आपको जो आपने लिखे हैं उनको अगर मंजूर करे तो आपका लाए अमल पर देखिए हमारा लायमल यही होगा कि हम तमाम धरने उसी वक्त फॉलो कर लेंगे और पुरअमन तौर पर जो हमारे एहतजाज है वो जारी रहेंगे लेकिन तमाम धरने हमें अभी भी यही किया है कि रास्तों को खोला जाए और हमारे जितने एहतजाज है वो मेन शाहराहों में ना हो हम आवाम को तंग नहीं करेंगे अगर हमारे डिमांड्स पूरे किए जाते हैं तो तमाम धरने ख़त्म किए जाएंगे